एवरीबॉडी, आज का जो क्लास है वो सीए इंटरमीडिएट का मई 2025 का आरटीपी को डिस्कशन करने के लिए है। रिविजनल टेस्ट पेपर जिसमें इंस्टीट्यूट 20 क्वेश्चन डालता है उसको डिस्कस करने के लिए है। तो मई 25 में जब आप पेपर देने बैठोगे तो ये आरटीपी कवर हो जाएगा। आप इस क्लास को मेरे साथ कर लो बस। तो देखो, पहला क्वेश्चन है multiple choice question based on case scenario. In the books of G Limited, closing inventory in March 24 is 10,40,000 based on FIFO. Company decides to change from FIFO to weighted average for ascertaining the cost of inventory for 31/3/2024. So this is a changes in the accounting policy. This is a change in the accounting policy. On the basis of weighted average method, the closing inventory is 8,80,000. रियलाइजेबल वैल्यू इज 12 लाख, तो उन्होंने 8,80,000 पे वैल्यू करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स एंड व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2024। आंसर है कि इन्वेंट्री 8,80,000 में वैल्यू करना पड़ेगा और पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फैक्ट ऑफ द चेंज, इफेक्ट ऑफ द चेंज, इसका फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब आइए आंसर ढूंढते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री विल बी 8,80,000, करेक्ट। द फैक्ट दैट द वैल्यूएशन मेथड हैज बीन चेंज्ड विल बी डिस्क्लोज्ड। खाली फैक्ट नहीं, फैक्ट के साथ इफेक्ट भी। अगर ऐसा बात नहीं लिखा होगा ऑप्शंस में तो हम इसको मान लेंगे, पर अभी भी इस ऑप्शन को मैं फुली करेक्ट नहीं मान रहा हूं, बट ये रॉन्ग भी नहीं है। आगे, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, रॉन्ग। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 12 लाख, रॉन्ग। The value of inventory will be 8,80,000 and the full disclosure with the amount of valuation method, the valuation method has changed to be disclosed in the financial statements. ये देखो, amount effect हो गया और method change fact हो गया, तो fact and effect का disclosure देना पड़ेगा। So option D is correct. Next question. A Limited has a balance of 17,15,000 in the loan account with State Financial Corporation, which includes 1,15,000 for interest outstanding. तो इंटरेस्ट को अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा और जो 16 लाख बचेगा उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। द लोन विल बी डिस्क्लोज्ड एज फॉलोज। 16 लाख सिक्योर्ड लोन, आधा करेक्ट है, बट 1,15,000 के बारे में भी तो बात होना चाहिए। 16 लाख सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1,15,000 अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नो। 16 लाख सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड 1,15,000 अंडर अदर करेंट लाइबिलिटीज, दिस लुक्स करेक्ट। डिस्क्लोज 16 लाख एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड नो डिस्क्लोजर फॉर 1,15,000, दिस इज रॉन्ग। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए जनरल एमसीक्यू, थर्ड नंबर क्वेश्चन। मोस्ट बाई प्रोडक्ट्स एज वेल एज स्क्रैप और वेस्ट मटीरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल. These are measured at net realizable value. So the answer is net realizable value. Fourth question. What do you mean by accrual basis with reference to accounting standard 1? Also specify 3 regions for accrual basis. तो accrual basis में क्या होता है? Income and expenses या revenue and expenses are recorded as and when they are accrued. That is, they are recognized when they are earned income के लिए and when they are incurred expenses के लिए। रीजन क्या है? पहला रीजन उन्होंने लिखा कि accrual basis of accounting attempts to record the financial effect of the transaction and event and circumstances of an enterprise in the period in which they occur rather in the period in which the cash is received or paid. तो accrual basis का definition को रिपीट किया। Receipt and payment of the period will not coincide with buying, producing or selling of the events and other economic events that affect the entity's performance. Right बात है। Third, the goal of accrual basis is to follow the matching concept of income and expenditure so that enterprise performance can be measured. Good है। Fourth, ये ज़्यादा important है। Fourth और third, fourth and five. Accrual basis of accounting recognizes asset, liability, revenue, expense for the amount received or paid in cash in past and amount expected to be received or
पेड इन फ्यूचर ऑल्सो, मतलब रिसीट पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्रूवल इज इंपॉर्टेंट। तो अगर पहले भी हम कोई पैसा रिसीव कर चुके हैं, अगर इनकम अभी अक्रू हो रहा है, जैसे तुम लोग का ट्यूशन फीस हम पहले रिसीव कर लेते हैं, पर अक्रू बाद में होता, जब अक्रू होता है हम लोग तब पीएल में लिखते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस इज इन द टाइमिंग ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्लोजिंग इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल ए, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी 280, आईटीसी अवेलेबल 25 है, तो आपको माइनस कर देना पड़ेगा बिकॉज आईटीसी इज ए सेपरेट असेट। तो 280 में से 25 आप माइनस कर दो, इट इज 255। फ्रेट इनवर्ड 35, हैंडलिंग चार्जेस 20। अगर तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बिकम्स 310, और लिखा रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 200 है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तक बात तभी जाएगी अगर फिनिश गुड्स अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा, और रॉ मटेरियल का प्राइसेस तो डिक्लाइन पे है, वो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट रिकवर कर पाता है कि नहीं पहले वो देखना होगा। फिनिश गुड्स के बारे में लिखा मटेरियल कंजम्पशन, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, तीनों अगर मिला देते हैं तो 8 8 16 और 4 20, 400। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में लिखा 3,60,000 है, नॉर्मल कैपेसिटी 36,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 है। तो आपको मालूम है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन छोटा रहता है, आपको नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से ही फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। तो आप अगर डिवाइड करोगे 3,60,000 को 36,000 यूनिट से तो 10 रुपया पर यूनिट आएगा। तो फिनिश गुड्स का टोटल कॉस्ट जो 400 था, 400 में 10 ऐड कर देंगे तो 410 फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकला हम लोगों का। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 500। अगर एनआरवी 500 है, दैट मीन्स फिनिश गुड्स आर एबल टू रिकवर देयर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट 410 है। तो इन दैट केस फिनिश गुड्स तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर दैट इज 410 पे वैल्यू होगा, और रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू नहीं होगा। और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना था? रॉ मटेरियल का कॉस्ट था 310। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे 1 का, तो देखो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन 310 रुपया पे हुआ और फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन 410 रुपया पे हुआ। 700 यूनिट और 1800 यूनिट हाथ में था, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 9,55,000 आ गया। मल्टीप्लीकेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। बट आप सेकेंड क्वेश्चन देखो जहां पे उन्होंने बोला एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स इज 380, जबकि कॉस्ट था 410। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि फिनिश गुड्स आर नॉट एबल टू रिकवर देयर कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स को तो एनआरबी पे वैल्यू करना ही पड़ेगा, रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट था 200। तो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो, रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे 200 पे वैल्यू किया और फिनिश गुड्स को 380 पे वैल्यू किया। फाइनल आंसर 8,24,000 आया। अब उसका वर्किंग नोट दिखाया, रॉ मटेरियल का 310 जैसा मैंने टोटल बनाया था, फिनिश गुड्स का 410 मैंने वर्किंग बना करके दिया था। ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड को 36,000 यूनिट से डिवाइड किया। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 हुआ होता, ज्यादा हुआ होता, तो 40,000 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम होता है तो नॉर्मल प्रोडक्शन से ही डिवाइड करना पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज माई क्वेश्चन नंबर 6, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई LMN लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड for the year 2024, you are required to find cash from operating activities using direct method. Direct collection from debtor, cash sale, payment to creditor, purchases, cash purchases, payment for expenses, सीधे सीधे लिखना पड़ेगा। तो पूरा बैलेंस शीट तो दिया नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड पेएबल दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, सेल्स दिया 85,50,000,
तो अगर डेटर ओपनिंग क्लोजिंग हम देखेंगे, दोनों 31/3/24 ही दे दिया है, रॉन्ग है ये। कोई 31/3/23 लेना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं जरा चेक कर लूं। वन 188,205। हाँ, तो ये लोग ठीक से मेरा प्रिंटिंग एरर है, मैं उसको जरा सुधार देता हूं आपके लिए। हाँ, ये 31/3/2023 है, या आप इसको 1/4/23 कर दो, ठीक है। तो ये हम लोगों का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो अब आप देखो, अगर ओपनिंग डेटर 188 है, क्लोजिंग डेटर 2,05,000 है और सेल 85,50,000 है, तो कितना कलेक्शन हुआ? 1,88,000 का कलेक्शन हो गया होगा, प्लस 85,50 का कलेक्शन, उसमें से 2,05,000 का कलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनल कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज 85,33,000। तो डायरेक्ट मेथड में आपको सीधा 85,33,000 लिखना होगा। ये देखो 85,33,000, इसका वर्किंग नोट या तो डेटर अकाउंट बना करके बना देना, या फिर प्लस माइनस करके स्टेटमेंट के फॉर्म में बना देना। अब आइए देखो, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल अगर दिया हुआ है, आपको पहले वहां से परचेज निकालना होगा, परचेज से ही पेमेंट टू क्रेडिटर निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज का क्या कहानी है? सिंपल वर्किंग नोट है, मैं आपके सामने लिखता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ 56 लाख, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक देख लो 165 120, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 165, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1.20। तो अगर यहां से परचेज निकाल लें तो अपना परचेज निकल जाएगा 56 लाख प्लस 1.20 माइनस 1.65, तो इट इज 55,55,000। ये परचेज है। इसका वर्किंग नोट देखो, यहां पे इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन में बना करके दिया है। ये देखिए 55,55,000, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिख दिया, फिर परचेज निकाल दिया। अब इस परचेज के बेसिस पे पेमेंट निकालना पड़ेगा। तो आप अगर अपना ओपनिंग क्रेडिटर देखेंगे तो अपना ओपनिंग क्रेडिटर है 2,15,000, तो 2,15,000 का पेमेंट आएगा, 55,55,000 का पेमेंट आएगा, उसमें से 195 नहीं आएगा। तो पेमेंट टू क्रेडिटर कितना आएगा? 215 प्लस 55,55 माइनस 195। तो पेमेंट टू क्रेडिटर, एक बार फिर से मेरा कुछ रॉन्ग हो गया, 215 प्लस 55 माइनस 195, सो 5575 इज द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आइए मैं कैश फ्लो दिखाता हूं। पेमेंट टू क्रेडिटर 55,75,000, ये रहा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस को तो सीधा सीधा पेमेंट दिखा देना है, बिकॉज एक्सपेंसेस में कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं था। अदर इनकम में कुछ नहीं है। इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में लिखना होगा। डिप्रीसिएशन कैश फ्लो में नहीं आता है। ये रहा एडमिन एक्सपेंसेस 15,40,000, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस फिनांसिंग एक्टिविटी का स्टोरी है, यहां पे नहीं आएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस देखेंगे, अगर रियलाइज्ड है तो आउटफ्लो में लिखेंगे, अनरियलाइज्ड है तो आउटफ्लो में नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। टैक्सेशन लिखा, टैक्स का प्रोविजन है, ये P&L में है, तो इससे पेमेंट निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट लिखा। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल इंक्लूड अमाउंट रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज ओनली। तो हम लोग, तुमने देखा होगा, क्रेडिट सेल से रिसीट फ्रॉम डेटर निकाल लिए, परचेज से पेमेंट टू क्रेडिटर हमने निकाल लिया। यहां लिखा फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट्स इंक्रीमेंट इन द लायबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बिटवीन द एक्विजिशन डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। तो साफ लिखता है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस बोरोइंग से रिलेटेड है और अनरियलाइज्ड है।
एक तो बोरोइंग से रिलेटेड है तो ऐसे ही फिनांस एक्टिविटी में आएगा, और दूसरा अनरियलाइज्ड है तो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। तो आपके कैश फ्लो में टोटल 3 आइटम आएगा। वन इज द कलेक्शन फ्रॉम डेटर विच इज, माने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात हो रहा है, दैट इज 85,33,000। वन इज पेमेंट टू क्रेडिटर एंड वन इज एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद टैक्सेस पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैश फ्लो के नीचे में दिखाया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में। तो आप अगर इस तीनों को बीच में ब्रेकअप दे देंगे तो 85,33 माइनस 55,75 माइनस 15,40,000, तो 14,18,000 बीच में आप लिख देना कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये 3 आइटम को कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में काम में लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने वो आंसर लिखा नहीं, आप लिख देना। उसके बाद लिखना टैक्सेस पेड 1,12,000। अब टैक्सेस पेड 1,12,000 कैसे निकलेगा, आइए टैक्सेस पेड का डिस्कशन करते हैं। ये देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग में 65,000 था, तो 65 का पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा, 65, और प्रोविजन बनाए थे 95 का। P&L में 95 दिखाई देता ना, तो 65 प्लस 95 160 का पेमेंट होना चाहिए। उसमें से 48 का पेमेंट नहीं हुआ, तो माइनस कर दिए 48, तो 1,12,000 का पेमेंट है। तो ये आप कैलकुलेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखा दो, नहीं तो लेजर बना करके दिखा दो। तो टैक्सेस पेड आया अपना 1,12,000, ये रहा टैक्सेस पेड। इसको थोड़ा अलग से दिखाना चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकाल करके फिर 1,12,000 का पेमेंट दिखा दो, तो आया कैश फ्लो बिफोर ऑपरेटिंग बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो 1418 माइनस 112 इज 13,06,000 कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 1,10,000, सीधे सीधे लिख के दिया था। तो फाइनली कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 14,16,000। इस आंसर में इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आंसर आया उसमें सिर्फ एक ही डिमेरिट है, वो है कि 14,18,000 उन्होंने निकाल के नहीं दिखाया बीच में। अदरवाइज कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेड को नेट करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन दिखा देना चाहिए था। फिर टैक्सेस पेड माइनस करते तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाता, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाते। बस ये एक बीच में मिसिंग है, यहां पे वो आंसर होना चाहिए था 14,18,000। तो आप वो दिखा देना, बहुत बड़ा एरर नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने ये एरर किया है। डेटर का कैलकुलेशन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर का, पेमेंट टू क्रेडिटर का, तो मैंने तो फिंगर्स पे कर दिया आपके सामने, आप उसको लेजर बना के कर लीजिएगा। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन। स्मार्ट लिमिटेड क्लोजेज इट्स बुक्स every year on 31st March. Financial statement of March 24 are to be approved on 30 June. During the first quarter of 24-25, 30 जून को बैलेंस शीट साइन हो रहा है, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जो भी इवेंट होगा दे विल बी कंसिडर्ड एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इफ दे आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अकाउंटेंट ने आपसे गाइडेंस पूछा है। पहला, स्मार्ट लिमिटेड के पास 50 यूनिट का इन्वेंट्री है, कॉस्टिंग 5500। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ए हेवी डिक्लाइन इन द डिमांड इन द नेक्स्ट ईयर। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा तभी उनको डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। द इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ड्यू टू द फॉल इन डिमांड द प्राइसेस हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। अब वो 4,000 रुपया में 5 ठो मशीन बेचा है, तो अपने जो ईयर एंड इन्वेंट्री है उसको 5500 और 4,000 विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना चाहिए, बिकॉज द कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को इसको और अच्छा से लिखना चाहिए था कि ड्यूरिंग द ईयर एंड, बिफोर द ईयर एंड। अनुपम माइक में कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हेलो, हाँ ठीक, कि बिफोर द ईयर एंड ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके कारण हमको डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल इतना लिखने से भी वो यही माना जाना चाहिए। तो आपको इन्वेंट्री को 5500 और 4,000 विच एवर इज लोअर, दैट इज 4,000 में वैल्यू करना पड़ेगा। अब आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को डिफाइन किया, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिफाइन किया। उसके बाद इन्होंने लिखा आंसर पहला वाला का कि सिंस ऑन 31st मार्च द कंपनी वॉज एक्सपेक्टिंग ए हेवी डिक्लाइन इन द डिमांड, देयरफॉर डिक्लाइन शुड बी कंसीडर्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करता था। हेंस द इन्वेंट्री शुड बी रिटन डाउन टू 4,000 रुपीज, दैट इज 2 लाख रुपया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
ए फायर हैज ब्रोकन आउट इन द कंपनीज गोडाउन ऑन 15 अप्रैल। कंपनी ने 25 लाख का लॉस एस्टिमेट किया है, 75% रिकवर हो जाएगा। तो फायर कभी भी एडजस्टिंग इवेंट नहीं हो सकता, इट्स ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। डायरेक्टर रिपोर्ट में आप डिस्क्लोजर दे दो, दैट विल बी इनफ। और हाँ, क्योंकि लॉस 25 लाख का है और 75% रिकवरेबल है, तो 25 लाख का 25% का लॉस 6,25,000 है। तो अगर मैनेजमेंट को लगता है इसके कारण गोइंग कंसर्न में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, तो वो गोइंग कंसर्न के वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस और नॉट, उसके बारे में कंपनी को एक असेसमेंट करना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा लॉस अभी दिख नहीं रहा है, तो आप इसको नॉन एडजस्टिंग मान करके लिख दो, नो डिस्क्लोजर, ओनली ए डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर रिपोर्ट विल बी इनफ। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखा है। लिखा फायर हुआ, इट कैन नॉट बी एडजस्टेड, इट शुड नॉट बी एडजस्टेड इन द 2023-24। हाउएवर, अगर गोइंग कंसर्न का एजम्पशन इवैल्यूएट करेंगे और गोइंग कंसर्न अगर अप्रोप्रिएट है तब तो ठीक, अगर नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। कंपनी ने एक सेल एग्रीमेंट किया 30 मार्च को, कंसिडरेशन 7.5 लाख का था, बुक्स में 5.5 लाख रुपए का वैल्यू है, 2 लाख का प्रॉफिट है। द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इज कंप्लीटेड इन मे, साफ लिख दिया कि मार्च में सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कोई भी चीज का सेल हम लोग तब रिकॉर्ड करते हैं जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में होगा। देखते हैं आंसर क्या लिखता है इंस्टीट्यूट। लिखता है सिंस द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड हैपेंड इन मे, नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 2023-24। हाउएवर, डिस्क्लोजर आप डायरेक्टर रिपोर्ट में देना चाहें तो दे सकते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट अगर सिग्निफिकेंट नेचर का होता है तो डायरेक्टर रिपोर्ट में आप उसका डिस्क्लोजर देते हो, वो लिखा है वहां पे। यहां पे डायरेक्टर रिपोर्ट वर्ड भी इंस्टीट्यूट को लिखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, कंपनी को गवर्नमेंट ग्रांट मिला था 22-23 में 15 लाख का फॉर परचेज ऑफ ए मशीन। कंपनी को एक नोटिस मिला है 15 जून को कि वायलेशन हुआ है और वायलेशन 23-24 में हो गया था। तो वायलेशन अगर 23-24 में हो गया था तो कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग प्रायर टू द ईयर एंड, तो आपको इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ग्रांट का ट्रीटमेंट जैसा हुआ था, अगर मशीन लेस हुआ था तो मशीन बढ़ाना पड़ेगा, अगर ग्रांट को डेफर्ड इनकम में डाला है तो डेफर्ड इनकम को खत्म करना पड़ेगा। वो सब बात तो किया नहीं, खाली एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग को सेलेक्ट करने बोला है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा कि सिंस द नोटिस इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, द सेड ग्रांट शैल बी एडजस्टेड in the financial statement 23-24 because the violation took place in 23-24. Hence, the company was aware of it and it is an adjusting event. मैं वापस से क्वेश्चन पेपर में जाता हूं। उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए और बोला रीजन के साथ बताओ कि इनको कैसे एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहला वाला इन्वेंट्री वाला एडजस्टिंग इवेंट था, फायर वाला नॉन एडजस्टिंग था, प्रॉपर्टी सेल वाला नॉन एडजस्टिंग था, रिफंड ऑफ ग्रांट वाला एडजस्टिंग था। तो ये 4 इवेंट का एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का डिस्कशन रीजन के साथ एक्सप्लेन किया हमने। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अकाउंटेंट हीरा लिमिटेड का आपसे ओपिनियन मांगा है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर के। लिखा है कि वेदर दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लीज एडवाइज हिम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला क्वेश्चन, टिल द प्रीवियस ईयर फर्नीचर वाज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 years, फ्रॉम द करेंट ईयर यूजफुल लाइफ इज चेंज टू 3 years। तो ये तो चेंजेस इन दी अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ऐसे भी डेप्रिसिएशन का कोई भी सब्सिक्वेंट चेंजेस इन दी एस्टीमेट कहलाता है। फिर लिखा मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस। सच एम्प्लॉइज विल गेट ए पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम। तो अगर पहले कोई चीज का पॉलिसी नहीं है, आप नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। लास्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March देयर वाज ए चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री। फीफो से
वेटेड एवरेज से फीफो, दिस इज चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। पहला, चेंज इन द यूजफुल लाइफ फ्रॉम 5 to 3 इज ए चेंज इन द एस्टिमेट, नॉट चेंज इन द पॉलिसी। हम लोगों ने वही डिस्कस किया। अडॉप्शन ऑफ ए न्यू पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजैक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्कस कर लिए थे। चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का यहां पे कंप्लीट होता है। अब आइए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है एपी लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्टर है, अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर के लिमिटेड, सबमिटेड सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच ऑफ द 3 यूनिट्स, a single agreement is entered into between the parties. The agreement lays down the value of each of the 3 units is 50 lakhs, 60 lakhs and 75 lakhs. हर का अलग अलग कंप्लीशन का टाइमिंग है। कमेंट कि शुड बी ट्रीटेड एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट और 3 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। देखो 3 अलग अलग कोटेशन दिया गया, 3 अलग अलग प्राइसेस फाइनल हुआ, तीनों का अलग अलग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का हक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के पास में था। तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भले एग्रीमेंट एक ही साइन हुआ है, बट दीज आर 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और 3 कॉन्ट्रैक्ट मानते हुए 3 बार अलग अलग जो भी वो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगा करके प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। आइए इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। एज पर AS7, when there are many assets, construction of each asset should be treated as separate contract when separate proposal have been submitted, यहां पे था। each asset is subject to separate negotiation, यहां पे था। cost and revenue of each asset can be identified, यहां पे था। तो क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट शुड बी कंसीडर्ड एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 दिसंबर 2023 एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिला, 45 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। कंपनी हैज ऑलरेडी इनकर्ड 32.5, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गया। एडिशनल कॉस्ट एस्टिमेटेड 15.10 लाख है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 32.5 प्लस 15.10 तो 47.6 आता है, और रेवेन्यू टोटल 45 लाख है। तो दिस इज ए लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। पहले हम लोगों को परसेंटेज वर्क डन निकाल करके लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा हम लोगों से क्वेश्चन में कि व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द रेवेन्यू इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। तो एक तरह से पूरा P&L ही बना करके देना पड़ेगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। पहले टोटल कॉस्ट का वर्किंग निकला 45 लाख, जो हम लोगों ने भी निकाला। 45 लाख का वो है रेवेन्यू टोटल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं। तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। लॉस का इवेल्युएशन उन्होंने वाला वर्किंग यहां पे करके दिया। अब यहां के बेसिस पे हम लोगों को परसेंटेज वर्क डन निकालना पड़ेगा। परसेंटेज वर्क डन इज 32.5 डिवाइडेड बाई 47.6 विच इज 68.28%। क्योंकि हम लोग का रेवेन्यू टोटल में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 45 लाख है, 45 लाख इंटू 68.28% हम लोगों का रेवेन्यू होगा जो PL में जाएगा, जिसका आंसर 30.73 आया। उसके बाद हम लोगों को P&L बनाना पड़ेगा और हम लोगों को प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये रहा देखो P&L, ये इंस्टीट्यूट ने बना करके नहीं दिया था, मैंने बना दिया अलग से। रेवेन्यू 30.73 जो यहां पे हम लोगों ने निकाला था, ये रहा। कॉस्ट 32.5 था तो लॉस 1.77 है। 2.6 का लॉस P&L में आना चाहिए, तो हम लोगों को 0.83 का प्रोविजन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पॉज कर दो। तो आप अगर देखोगे, आपको सबसे पहले ये वाला वर्किंग बना करके लॉस निकालना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने वर्किंग ऊपर नीचे किया, आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद आपको परसेंटेज वर्क डन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये वाला P&L बना करके ये प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर निकाल करके देना पड़ेगा। मैंने वर्टिकल फॉर्म में बनाया, आप T शेप में भी बना सकते हो। स्टार्ट कर दिया। अब आइए अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द इंफॉर्मेशन ऑफ BS लिमिटेड। गुड्स ऑफ 50,000 वेयर सोल्ड ऑन 18 मार्च
बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर इट वे डिलीवर्ड ऑन, दीज वे डिलीवर्ड ऑन 15/4। तो आप जब जानते हो बायर के रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिलेड होती है, रेवेन्यू करेंट ईयर में लिख लिया जाता है, डिलीवरी बाद में होता जाएगा। तो ये 50,000 का रेवेन्यू हम लोगों को इसी साल लिखना पड़ेगा। ऑन 13/1/2024 गुड्स ऑफ 1,25,000 आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 20% ऑफ दीज गुड्स आर अनसोल्ड एंड लाइंग विद कंसाइनी। कंसाइनमेंट के केस में हम लोग उसी को अपना सेल लिखते हैं जो कंसाइनी सेल कर चुका होता है। तो कंसाइनी ने 1,25,000 का 80% 1 लाख रुपया ही सेल किया है, तो 1 लाख हम अपना रेवेन्यू लिखेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन, 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वेयर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1/12/2023। पीरियड 3 महीना का है अप्रूवल का, आफ्टर विच गुड्स वेयर विल बी कंसीडर्ड एज सोल्ड। बायर ने 75% का अप्रूवल दे दिया और नो अप्रूवल वाज गिवन टिल 31 मार्च। तो आप देखो 1 दिसंबर को माल बेचे थे, 31 मार्च चला गया तो 4 महीना गुजर गया, जबकि 3 महीना का ही कहानी था। तो अब आप रिटर्न कर भी नहीं सकते, तो हम लोगों को पूरी सेल को सेल मान लेना पड़ेगा, इंटायर 1 लाख रुपीस को, क्योंकि 75% 75,000 तो बायर अप्रूवल भी दे दिया था और बाकी 25,000 रुपया के लिए अप्रूवल का वक्त खत्म हो गया, तो फिर अप्रूव मान लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने 3 महीना का ही रिटर्न का टाइम दिया था। तो टोटल 2.5 लाख रुपया का हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन ने पूछा कि आप रीजन के साथ बताओ कि कितना रुपया रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट लाइन में लिखा वो फर्स्ट लाइन में ज्ञान लिखा कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है। डेफिनेशन जिसको AS9 का बोलते हैं ना, जब इफेक्टिव कंट्रोल अपना खत्म हो जाए, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। आप केस 1 से स्टार्ट करो, 50,000 को सेल लिखना है, डिलीवरी इज डिलेड बिकॉज ऑफ बायर्स रिक्वेस्ट, सेल विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। कंसाइनमेंट के केस में 1 लाख रुपीज लिखना है और सेल और अप्रूवल में पूरा 1 लाख लिखना है। तो 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख पूरा 2.5 लाख रुपया हम लोगों को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। तो आप देखो धीरे धीरे करके हम लोगों ने आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब बाकी 10 क्वेश्चन हम लोग आरटीपी का और कवर करेंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपम थोड़ा चाय पिला दे। मैं AS10 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूं। सृष्टि लिमिटेड contracted with a supplier for purchase of machinery which will be installed in its department A in 3 months time. Special foundation will be required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. Cost of site preparation and laying foundation 1,41,870 रुपया. This will form part of cost of the asset. These activities were supervised by a technician during the entire period, who is employed for this purpose at 45,000 per month. The technician service was given by department B to department A, which billed the service at 49,500 per month by adding 10% profit margin. इंटरडिपार्टमेंटल ट्रांसफर में अगर कोई प्रॉफिट मार्जिन लिया जाता है, कंपनी के लिए कॉस्ट को ही कॉस्ट माना जाता है, सो 45,000 को ही कॉस्ट लेना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये टोटल कितने महीने का टाइम था, 3 महीने का, तो 45,000 इंटू 3 को कॉस्ट मानना पड़ेगा। तो एक तो 141,870 कॉस्ट हो गया अपना। पेन आज ठीक से चल नहीं रहा है, हाँ अब ठीक है। और एक ये 45,000 इंटू 3 कॉस्ट हो गया। फिर लिखता द मशीन वॉज परचेज एट 158,34,000 विच इज इंक्लूसिव ऑफ IGST 12%, फॉर विच इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। तो इनपुट क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो हम लोगों को उसको अलग असेट मानना पड़ेगा। असेट का कॉस्ट फिर 158,34,000 नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। तो सर पता कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूडिंग 12% GST है, तो 158,34 इज 112, हम लोग इसका 100 निकाल लेंगे। तो 158,34 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112 करेंगे तो 141,375 आएगा। ये देखो, ये हमारा कॉस्ट ऑफ द असेट का परचेज प्राइस बन जाएगा, और जो डिफरेंशियल ड्यूटी है वो अलग से असेट बनेगा, वो कॉस्ट ऑफ द असेट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर लिखा 55,770 इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वी विल इंक्लूड इट इन द कॉस्ट ऑफ द असेट।
फिर लिखा आर्किटेक्ट वाज अपॉइंटेड फॉर 30,000 रुपीज विच विल इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। बोला एसर्टेन द अमाउंट एट विच द मशीन विल बी कैपिटलाइज्ड। तो सारा डिस्कशन हो गया, एक तो मशीन का दाम, एक साइट प्रिपरेशन, एक टेक्नीशियन का सैलरी, एक इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट और एक प्रोफेशनल फीस, सब मिला के 145,00140 आया विच विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक लाइन ऊपर में लिख सकते हो कि ऑल द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी टू वर्क इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो लाइन नहीं भी लिखोगे, सीधे सीधे आइटम लिख करके जोड़ भी दोगे ना तो भी चलेगा। इंस्टीट्यूट ने तो सीधे सीधे जोड़ दिया है। अब आइए द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन ऑफ द बुक। AS 11 पैरा 46 ए के ऊपर जो पैराग्राफ आज के दिन रेलेवेंट नहीं है, 2020 मार्च में ये पैराग्राफ खत्म हो गया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी भी क्वेश्चन डाला है और मैंने आपको बोल रखा है कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन डाल सकता है तो पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है लीगल लिमिटेड, रबर बनाती है, मशीनरी चाहिए इसको, उसके लिए वो बोरोइंग लेती है फॉरेन करेंसी में। 1 अप्रैल 2023 को इसने $1 मिलियन का बोरोइंग लिया। 1 मिलियन $10 लाख को बोलते हैं। तब एक्सचेंज रेट 63 था। फंड्स वेयर यूज्ड फॉर एक्वायरिंग द मशीन। पूरा 63 लाख मशीन के लिए उन्होंने यूज किया। ऑन द सेम डेट हो गया। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन 10 साल का है, रेसिजुअल वैल्यू 30 लाख का। रेसिजुअल वैल्यू माइंडेड तो डिप्रिसिएशन निकालने के काम में लेंगे। अर्लियर ऑल्सो द कंपनी यूज्ड टू परचेज मशीन आउट ऑफ फॉरेन बोरोइंग, पहले भी ऐसा हुआ है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सच बोरोइंग वेयर चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वेयर नॉट कैपिटलाइज्ड इवन दो द कंपनी हैड एन ऑप्शन टू कैपिटलाइज इट एज पर नोटिफाइड AS 11। इसके पहले कंपनी ने जितनी भी बोरोइंग ली सबका लॉस को P&L में डाला। नाउ फॉर दिस न्यू परचेज ऑफ मशीन द कंपनी इज इंटरेस्टेड टू अवेल द ऑप्शन ऑफ कैपिटलाइजिंग द सेम टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक्सचेंज रेट इज 62। Assume that on the March 2024 Legal Limited is not having any old long-term foreign currency borrowing except for the amount borrowed, this वाला लिखता comment whether Legal Limited can capitalize the exchange difference to the cost of the asset, if yes calculate the depreciation amount। अब अगर आप AS के टेक्स्ट पे जाओगे तो उन्होंने लिखा है कि एक बार जो ऑप्शन अवेल कर लिए आप उस ऑप्शन को रिवोक नहीं कर सकते। तो बोलता कंपनी के पास पहले भी कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन था, कंपनी ने ऑप्शन अवेल ही नहीं किया, कंपनी ने P&L में ही डाला। तो अभी कंपनी पहली बार ऑप्शन अवेल करना चाहती है। तो लुकिंग इनटू द प्लेन टेक्स्ट, आप अगर AS के टेक्स्ट पे जाओगे ना तो मेरा आइडिया ये है कि यहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यू गिर रहा है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये P&L में ही जाना चाहिए, असेट के साथ एडजस्ट नहीं होना चाहिए। बट अगर इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि कंपनी पहली बार ये ऑप्शन लेना चाहती है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, एज पर पैराग्राफ 46A for an enterprise which had earlier exercised the option of para 46 or not, the exchange differences arising on reporting of such borrowing at the rate different from whatever in so far as they relate to acquisition of the depreciable asset, it can be adjusted with the cost of the asset। मतलब आप बाद में भी ऑप्शन ले सकते हो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जो ऑप्शन ले लिए P&L में डालने वाला 1/4/2011 के बाद आपको उसी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन वाज। बट इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन ये है कि हम इसके पहले लॉस को P&L में डालते थे, अभी हम पहली बार ऑप्शन लेना चाहते हैं कैपिटलाइजेशन वाला, तो हम कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो लिखा अकॉर्डिंगली दो लीगल लिमिटेड हैज नॉट अर्लियर एक्सरसाइज द ऑप्शन,
it can avail the option to capitalize the difference, and therefore since legal limited had no earlier, ठीक है, पुराना बोरोइंग और कुछ नहीं है, तो खाली पुरानी बोरोइंग पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बोरोइंग पे कैपिटलाइजेशन का ऑप्शन वो कंपनी ले सकती है। तो मेरे व्यू से ये आंसर गलत है, बट स्टिल आप इंस्टीट्यूट का आंसर को ही लिख करके आना पड़ेगा। तो आपको इंस्टीट्यूट ने लिख करके दिया कि भाई आप एडजस्ट कर सकते हो, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट फिर 62 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलियन का प्रॉफिट है एसेट में, तो एसेट का वैल्यू गिराना पड़ेगा। मतलब लोन में प्रॉफिट है, 63 का रेट हैज बिकम 62 का रेट, तो आपको एसेट के साथ एडजस्ट कर दो 62, डिप्रीसिएशन हम निकालेंगे 62 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 5.9। तो एसेट 62 का माइनस 5.9 56.1 का। लेकिन पैरा 46 ए साहब बोलता है कि कोई भी ऑप्शन आप अगर एक बार अवेल कर लिए तो सेकेंड टाइम आपको उसको रिवोक करके नया ऑप्शन लेने नहीं मिलेगा। इनका यह बोलना है कि वेदर और नॉट, पहले हम लोग उस ऑप्शन में गए ही नहीं थे, तो यार पीएल वाला ऑप्शन तो आपने लिया ही था, 2 ऑप्शन था, या तो पीएनडल में डालेंगे या एसेट से एडजस्ट करेंगे, बट झमेला करने का नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर आएगा तो आप यही वाला आंसर लिख करके आइएगा। ऑल्दो फ्रॉम माई साइड दिस आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड ने डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में एक बिजनेस सेटअप किया, उनको सब्सिडी मिला। तो बैकवर्ड एरिया में आप जब कोई प्लांट डालते हो, उसका जो सब्सिडी मिलता है उसको प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाला ग्रांट बोलते हैं। इस ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस, द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 75 करोड़, अनुपम एसी बंद कर, इट रिसीव्ड 15 करोड़ रुपया का सब्सिडी इन जनवरी। कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस द लॉसेस, कीपिंग इन व्यू ऑफ द रेलेवेंट एएस। कंपनी का एक्शन जस्टिफाइड है क्या? आंसर इज नो। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का हवाला देना है और ये लिखना है कि इस तरह के ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में डालना है, पीएनडल में नहीं डाल सकते। द करेक्ट ट्रीटमेंट इज टू क्रेडिट द सब्सिडी टू कैपिटल रिजर्व, therefore accounting treatment followed by the company is not proper। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग मूव कर रहे हैं। मेरा चाय भी आ गया, मैं चाय पीते पीते सम सॉल्व करवाता हूं। Mr. Harsh has provided the following details. Some holding in 10% debentures are there, face value 100 है। ओपनिंग बैलेंस 12,500 डिवेंचर का है, कॉस्टिंग 12,25,000 है। 1 जून को परचेज किया 9,000 डिवेंचर 98 एक्स इंटरेस्ट पे। 1 नवंबर को फिर 12,000 डिवेंचर परचेज किया 115 रुपया कम इंटरेस्ट पे। फिर 13,500 डिवेंचर बेच दिया 110 रुपया कम इंटरेस्ट पे। ईयर एंड में मार्केट वैल्यू 115 रुपया दिया हुआ है, तो आपको करेंट इन्वेस्टमेंट मान के सम सॉल्व करना होगा। ड्यू डेट 30 जून और 31 दिसंबर को है। क्योंकि अपना ईयर एंडिंग मार्च में है, अप्रैल से साल चालू हो रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करके दिखाना पड़ेगा। ब्रोकरेज 1% है, वो सीधे प्राइस पे एडजस्ट होता है। 98, 115, 110, उस पर सीधा 1% मल्टीप्लाई करना होगा। परचेज में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल में ब्रोकरेज लेस होता है। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके दिखाओ, बाकी सारा वर्किंग नोट चलता रहेगा। मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूं। 1423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आप नंबर लिख देना 12,500, वो बेटर रहेगा। इंस्टीट्यूट ने नॉमिनल वैल्यू लिखा है, आप यहां नंबर करके लिखना इजी रहेगा। तो 12,25,000 उन्होंने कॉस्ट लिख दिया था। 3 महीने का अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 10 रुपया का ब्याज है, 100 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 10% इंटरेस्ट है, तो 10 रुपया निकला। 3 महीना का ब्याज 2.5 होता है। तो 12,500 पे 2.5 अगर मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको इंटरेस्ट 31,250 मिल जाएगा। इंटरेस्ट का कॉलम को प्लीज थर्ड कॉलम में लिखना, इंस्टीट्यूट ने यहां लिखा, आप इसको यहां लिखना, कॉस्ट को इधर लिखना, आपके लिए इजी रहेगा। फिर 1 जून को एक परचेज है, इंटरेस्ट 30 जून को आएगा। तो 1 जून का परचेज है, उन्होंने साफ लिखा 1 जून का परचेज इज 9,000 डिबेंचर 98 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो 98 है और 1% ब्रोकरेज है, तो 98 इंटू 1% प्लस कर दोगे तो 98.98 आएगा। उस पर आपको 9,000 मल्टीप्लाई करना है तो ये आंसर आ जाएगा। तो 98.98 इंटू 9,000 दिस इज 890,820। ये अपना असेट का दाम बन गया, माने इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन गया, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो टू बैंक आपको इंटरेस्ट लिखना है। अब इंटरेस्ट 1 जून मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो 10 रुपया का 5 महीने का इंटरेस्ट 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9,000 अगर करोगे तो इट इज कमिंग 37,500। ये रहा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। उसके बाद 30 जून आया। 30 जून को हमारे पास टोटल 12,500 और 9,000 21,500 डिबेंचर था। इस पे हमको 5 रुपया करके ब्याज मिलेगा, 10 रुपीज 6 मंथ 5 रुपया। तो इंटू 5 अगर मैं करता हूं तो 21,500 इंटू 5 1,07,500 का ब्याज मिल गया। ठीक है, तो यहां तक का एंट्री क्लियर है। ये वाला क्लियर है, सॉरी फर्स्ट वन इज क्लियर, सेकेंड वन इज क्लियर एंड थर्ड वन इज क्लियर। अब आइए 1/11 को नया परचेज हुआ, फिर दिसंबर में ब्याज आएगा। तो 1/11 में 115 रुपया कम इंटरेस्ट पे परचेज हुआ। तो अगर ब्याज निकालोगे 1/11 को, अभी 30 जून को ब्याज हुआ था, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना चला गया, तो 12,000 डिवेंचर है। अगर आप ब्याज निकालोगे तो निकलेगा 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 3 रुपया 33 पैसा इंटू 12,000, तो निकला 40,000 रुपया, 39,999, 40,000 रुपया निकला। आइए इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला है देखते हैं। ये रहा देखो 40,000 रुपया। अब परचेज प्राइस उन्होंने बोला 115 रुपया कम इंटरेस्ट, माने ये 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है, और ब्रोकरेज ऐड करना है 1% का। तो मैं आपको सिंपल तरीका आपको बता देता हूं, आपने पहले भी किया है मेरे साथ बैठ के। सॉरी 115 नहीं, हाँ 115 कम इंटरेस्ट। तो थोड़ा सा जगह अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूं। हेलो, कि भाई 12,000 तो बॉन्ड है, 115 रुपया का कम इंटरेस्ट प्राइस है, तो 115 इंटू 1% प्लस, तो 115 इंटू 1% प्लस इज इक्वल टू इंटू 1% प्लस इज इक्वल टू 116 रुपया 15 पैसा। तो 12,000 में अगर आप 116 रुपया 15 पैसा मल्टीप्लाई करोगे, 12,000 इंटू 116.15, तो अपना आएगा 13,93,800। इसमें 40,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ, आप माइनस कर दोगे 40,000 तो अपना आंसर आ जाएगा 13,53,800। ये रहा, इस तरीके से निकाला जाता है। आपको ब्रोकरेज वाला सम हम करा चुके थे। उसके बाद दिसंबर में ब्याज मिलेगा, बट 12,000 बॉन्ड बिक चुका, याद रखना है। 111 सॉरी नहीं, कुछ बॉन्ड हम लोग बेचे थे ना रे, नहीं बेचे नहीं है, खाली खरीदे। तो शुरू में हम लोगों के पास कितना बॉन्ड था, 1 मिनट रुको, 12,500 फिर 9,000 फिर 12,000, तो 12,500 9,000 और 12,000। तो अगली बार 33,500 पे ब्याज मिलेगा। तो 33,500 इंटू 5 रुपया, तो ये देखो 1,67,500 इंटरेस्ट मिला हमको 33,500 नंबर ऑफ बॉन्ड पे। तो यहां तक दिसंबर तक का सारा स्टोरी इज ओवर। अब आया जनवरी, तो जनवरी में हमने 13,500 बॉन्ड बेचा। प्रॉफिट लॉस का भी कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। आइए उनका सेल का डिटेल देखते हैं।
उन्होंने बोला 13,500 बॉन्ड 110 रुपया कम इंटरेस्ट पे बेचे हैं, तो बेचे हैं तो -1% करना होगा, और 31 जनवरी को बेचा है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया था, तो 1 महीना का इंटरेस्ट, इंटरवीनिंग पीरियड में 1 महीना का इंटरेस्ट हम लोगों का इसके प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर इसका वर्किंग आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मैं यहां पे करके दिखाता हूं, इंस्टीट्यूट ने करके रखा है अच्छा से। कितना बॉन्ड बेचा? 13,500 बॉन्ड, तो 13,500 लिख दो इंटू 110 माइनस 1%, सेल है ना, तो 110 में बेचा तो 110 माइनस 1%, 108.9 आया। ये अपना सेल वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 1 महीना का, तो 13,500 पे 1 महीना का इंटरेस्ट, खाली जनवरी महीना का, तो 10 डिवाइडेड बाई 12, 1 महीना का इंटरेस्ट इंटू 13,500, तो ये आया 11,250 रुपीज। ये इंटरेस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको करना पड़ेगा 13,500 इंटू 108.90, जो आ रहा 14,70,150 माइनस 11,250 कर दोगे तो वो आपको कॉस्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। मेरा आया 14,58,900, चेक करता हूं, रुको, इंस्टीट्यूट का उतना आया क्या? हाँ आया ना, 14,58,900 और 11,250 इंटरेस्ट का। तो ये सेल का एंट्री बाई बैंक 13,500 इंटरेस्ट और ये सेल वैल्यू। लेकिन क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सेल हुआ है, इंस्टीट्यूट ने साफ क्वेश्चन में लिख के रखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके सम को सॉल्व करना है, और ब्रोकरेज 1% का है, तो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे आप जरा बोर्ड पे देखो। ये 12,500 बॉन्ड है, इसका कॉस्टिंग है 12,25,000, तो ये सिंपल 12,25,000 ले लिया कॉस्ट में, और ये 9,000 बॉन्ड है जिसका कॉस्टिंग था, थोड़ा सा मेरे को क्लीन करने दो, 890,820, तो इसमें से 1,000 बॉन्ड हम लोगों को बेचना है, तो 890,820 डिवाइडेड बाई 9,000 इंटू 1,000, तो ये आया 98,980, तो 12,25,000 और 98,980, ये अपना टोटल कॉस्टिंग आ गया। अगर मैं ऐड करूं इसमें 12,25,000 के साथ, तो टोटल कॉस्टिंग आया 13,23,980, 13,23,000, ठीक से लिखा नहीं रहा है, 13,23,980 सेल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है 13,23,980, मेरे कैलकुलेटर पे मैं दिखा दूंगा आपको। इसको बेचा हमने 14,58,900 में, तो अगर माइनस कर देते हैं 14,58,900, तो प्रॉफिट आता है 1,34,920, ये रहा 1,34,920 P&L में। उसके बाद ईयर एंड में मेरे पास 20,000 स्टॉक बचता है, 20,000 को फीफो पे मेजर करना है, मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा है, 100 एंड कितना है, कॉस्टिंग उसके हिसाब से बहुत कम है, ईयर एंड का मार्केट प्राइस लिखा 115, हम लोग का सारा परचेज ही सस्ता में है, तो हम लोग के पास कौन सा बॉन्ड बचा, देखो इसमें से 8,000 बॉन्ड बचा और इसका पूरा 12,000 बॉन्ड बचा, तो 12,000 का कॉस्टिंग है 13,53,800 और उसका था 98,980, 1,000 बॉन्ड का था ना, इंटू अगर मैं 8,000 कर देता हूं तो 98,980 इंटू 8, 791,840, 791,840, ये 8,000 का और ये 13,53,800, 12,000 का, तो प्लस अगर कर दूं 13,53,800, तो मेरा 21,45,640 आता है, जबकि मार्केट प्राइस 115 करके है, 20,000 इंटू 115 करोगे तो 23 लाख रुपए आएगा। मेरा कॉस्टिंग आ रहा है 21,45,640, तो आपको 21,45,640 पे लिखना होगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और वैल्यूएशन दिखाना भी पड़ेगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा, इंस्टीट्यूट ने भी वर्किंग बना करके दिखाया है। तीन महीने का इंटरेस्ट भी अक्रू करना पड़ेगा ₹2.5 करके, तो 20,000 इंटू 2.50, दैट इज कमिंग 50,000। इंटरेस्ट का टोटल को P&L में डालना पड़ेगा, दैट इज कमिंग 2,27,500, और ये जो P&L में जाएगा ही, आप
कॉस्ट कॉलम को अगर मैच कराओगे तो अपने आप मैच हो जाएगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस को P&L में डालना पड़ेगा। अब ये उनका सारा वर्किंग है। पहला परचेज का वर्किंग जिसमें 890820 आया, दूसरा परचेज का वर्किंग, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल का वर्किंग, उसके बाद ईयर एंड वैल्यूएशन का वर्किंग। तो जो हमने कैलकुलेटर पे कर दिया था आपके सामने, वो सब आपको वर्किंग नोट बना करके दिखाना पड़ेगा। एज वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो एक बढ़िया सा फुल फ्लेजेड सम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का AS 13 पे आपने देखा। नाउ आई एम गोइंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज AS 14, सम नंबर 15। आइए पढ़ते हैं साथ में। ज्ञान लिमिटेड और किरण लिमिटेड का बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, P&L है, डिबेंचर है, लोन है, ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल है, डिविडेंड पेएबल है। इजी बैलेंस शीट है। असेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक है। ज्ञान लिमिटेड ने किरण लिमिटेड को अक्वायर किया विद द फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर। मर्जर वर्ड लिखा है तो हो सकता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का कहानी बन जाए, बट पहले लिखा है बैंक अग्रीड टू वेव ऑफ 50% लोन ऑफ ज्ञान लिमिटेड। ज्ञान जो इस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी है, उसका लोन वेवर हो रहा है। तो आपको याद होगा जब ये सब चीज होता है, असेट लाइबिलिटी का वेवर और असेट वगैरह लॉसेस वगैरह राइट ऑफ, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बनता है। ये सम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस अमालगमेशन का है। आपको दोनों काम करना होगा। पहले परचेजिंग कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर वही कंपनी एक दूसरी वेंडर कंपनी को अक्वायर कर ले रही है, तो आपको डबल डबल जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी। पहले वो कैपिटल रिडक्शन वाली जर्नल, फिर एक्विजिशन का जो 3 ठो बड़ा बड़ा जर्नल होता है वो वाला। आगे 50% लोन का वेवर हुआ है ज्ञान लिमिटेड का। ज्ञान लिमिटेड का लोन कितने का है आइए देखते हैं। ये रहा लोन 40 का, ये 40 क्या है लैक्स है, 40 लैक्स, तो 20 लाख का लोन वेवर हुआ। आपको एंट्री मारना पड़ेगा लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 20 लाख रुपया। सोल्यूशन बाद में देखेंगे। फिर उन्होंने लिखा ज्ञान लिमिटेड विल रिड्यूस इट शेयर टू ₹2 पर शेयर। 10 रुपया वाला शेयर कैपिटल था, उसको 2 रुपया बना देगा। आइए शेयर कैपिटल को देखते हैं। बार बार पेज चेंज करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे। ये रहा शेयर कैपिटल 650, इसको 2 रुपया वाला बना देगा, माने 130 बना देगा। 65 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, 65 लाख शेयर ऑफ 2 ईच हो जाएगा 130। तो 520 का पैसा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो आपको एंट्री मारनी पड़ेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 650 टू कैपिटल रिडक्शन 520 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज वाला 130। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन। फिर लिखता है एंड देन दे विल कंसोलिडेट 5 शेयर्स इंटू 1 शेयर ऑफ 10 ईच। 2 रुपया को बाद में 10 रुपया बना देगा। 5 शेयर जो 65 लाख शेयर था ना इनके पास, उसको 13 लाख शेयर बना देगा। तो खाली शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज नहीं हो रहा। तो आपको एंट्री मारनी पड़ेगी इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 वाला डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला 130। मैं पहले ये 3 सॉल्यूशन में जर्नल एंट्री आपको दिखा देता हूं। ये देखिए लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, आप सीधा कैपिटल रिडक्शन लिख देना। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 650 टू कैपिटल 2 रुपया टू कैपिटल रिडक्शन 520। फिर इक्विटी कैपिटल 2 टू 10 130। ये तीनों डिस्कस में कर लिया। अब आप देखो हम लोग के कैपिटल रिडक्शन में 520 प्लस 20 540 का कैपिटल रिडक्शन जमा हो गया है। अब इसको कहां पे यूज करना है क्वेश्चन बताएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, पॉइंट नंबर 3 में कि ज्ञान लिमिटेड विल इशू 2 इक्विटी शेयर फॉर 3 ऑफ किरण लिमिटेड। न्यू शेयर्स विल बी इशूड एट ₹20 ईच, फेस वैल्यू 10। प्रीमियम पे इश्यू होगा, फेयर वैल्यू दे दिया है, एक्सचेंज रेशियो दे दिया है, तो आराम से पीसी निकल जाएगा। बट ये इक्विटी शेयर वाला है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पीसी में लेना
पड़ेगा, बट वो बात का बात है, पहले मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना चाहता हूं। तो अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में और कुछ नहीं लिखा उन्होंने क्वेश्चन में, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कंपनी की बैलेंस शीट में लॉसेस वगैरह है क्या। अगर नहीं है ना तो पूरा 540 को मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा। तो ज्ञान लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखो 260 का लॉस है। तो आउट ऑफ टोटल 520 नहीं था, 520 प्लस 20 540 में 260 को आप लॉस राइट ऑफ कर दो और 280 शायद बचेगा ना, कितना 540 माइनस 260, हाँ 280 बचेगा, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो फोर्थ जर्नल एंट्री सॉल्यूशन में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फोर्थ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 540, 2 P&L लॉस राइट ऑफ 260 और 2 कैपिटल रिजर्व 280। यहां पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन खत्म। ये 4 जर्नल एंट्री ज्ञान लिमिटेड की बुक में आपको पहले रिकॉर्ड कर लेना है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और फिर अमलगमेशन भी हो रहा है। आप इस तरह का सम क्लास में नहीं बनाए हो, आप अभी बना लो मेरे साथ, एकदम ईजी है। अब आइए अमलगमेशन का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर में वापस जाता हूं। 3 शेयर देगा 2 के बदले किरण को। किरण की शेयर कैपिटल है ये वाली 600, 60 शेयर है तो हम लोग देंगे 40 शेयर, 2 फॉर एवरी 3, और अपना शेयर इशू होगा 20 रुपीज करके। तो फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, पीसी इज ऑलवेज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो 40 इंटू 20, 800 इज द पेमेंट दैट इज टू बी मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए क्या लिखा है देखते हैं। 800 तो वर्किंग में आ ही जाएगा। लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स विल बी इशूड एट अ प्राइस ऑफ 105। तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर कितना था रे, 200 था ना। एक बार वापस से क्वेश्चन चलता हूं, हाँ 200 था। ये देखो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच का, तो हम लोगों को 2 लाख ही देना है, बट आवर इशू प्राइस इज 105। तो 2 लाख नंबर हो गया, 105 इज द फेयर वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ये 800 पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, 210 पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टोटल 1010 बिकम्स द परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। डिविडेंड ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड आफ्टर मर्जर। एक एंट्री मार देंगे, पहले तो असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे वेंडर कंपनी का। रिकॉर्ड कर लेने का 3 जो जर्नल एंट्री होता है वो करके उसके बाद आप 4 बोल दो ना, लॉस और लॉस को राइट ऑफ करने वाला भी, और उसके बाद ये डिविडेंड पेमेंट का डिविडेंड पेएबल टू बैंक लिख देंगे। उसके बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल है, और फिर लिखता है ट्रेड पेएबल ऑफ ज्ञान इंक्लूड 50 पेएबल टू किरण। तो वो जो डेटर क्रेडिटर का म्यूचुअल सेट ऑफ भी कर देंगे। तो वो एडिशनल 2 एंट्री कर देंगे। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो जर्नल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जर्नल हो गया था, अब मर्जर का जर्नल आपको दिखाता हूं। तो पहला जर्नल हुआ देखो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर 1010। फिर उनका सारा असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड किए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, ट्रेड पेएबल, डिविडेंड पेएबल, डिबेंचर। सर उसकी बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व भी था। हाँ जी था ना जनरल रिजर्व, तो सर उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक साथ नेट कर दिया है। हमारा क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। हम लोग पहले उसके जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड करते, सेम आंसर आएगा, घबराना मत। उसका बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व है 360। इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना बेटा, जब सॉल्यूशन बनाया है जर्नल एंट्री वाला बड़ा वाला, तो वो जनरल रिजर्व 360 नहीं लिख के लॉस को साथ में एडजस्ट कर दिया। उन्होंने लॉस ऑन मर्जर बोल करके लेजर ही खड़ा नहीं किया। हमारा फंडा, हम लोग यहां पे पहले 2 जनरल रिजर्व 360 लिखेंगे तो हम लोगों की बैलेंस शीट में एक लॉस खड़ा होगा, जर्नल एंट्री में लॉस ऑन मर्जर डिफरेंशियल फिगर खड़ा होगा, उसको हम लोग बाद में जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो आप अगर देखोगे 900 प्लस 250 प्लस 135 प्लस 140 माइनस 105 माइनस 60 माइनस 100 माइनस 1010 माइनस 360, तो आएगा 210।
तो हम लोग 210 का लॉस ऑन मर्जर खड़ा करते हैं पहले, फिर लॉस को इसी जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर देते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नेट करके एक साथ ही सल्टा दिया, चौथा वाला एंट्री खड़ा नहीं किया। तो आप यहां पे 360 लिखो आराम से, फिर यहां लिखो लॉस ऑन मर्जर 210, फिर एक एंट्री मार दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन मर्जर, क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे पास है। इंस्टीट्यूट ने इसको नेट करके कर दिया है। फिर लिक्विडेटर का पेमेंट हो गया, लिक्विडेटर टू कैपिटल, टू प्रेफरेंस कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप बोलेंगे 410 कैसे आया, इक्विटी में 400 प्लस 400 था, 10 प्लस 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर में 10 का था, तो 410 आ गया। उसके बाद ट्रेड पेएबल टू ट्रेड रिसीवेबल, म्यूचुअल सेट ऑफ का एंट्री हो गया, डिविडेंड पेएबल टू बैंक हो गया। आप ये सब करके बैलेंस शीट बना देना। बैलेंस शीट में जो भी 11-12 जर्नल एंट्री है और ज्ञान लिमिटेड का जो पुराना बैलेंस शीट है उसको मिला करके एक नया बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लेना। हाँ, आपको एक ऑप्शन और भी है बेटा, आप अगर ध्यान दोगे ना, तो ये जो लॉस हम लोगों का 210 आया था ना, 210, इसको हम लोग वो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिजर्व खड़ा नहीं हुआ था 280, उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहां तो जनरल रिजर्व के साथ इंस्टीट्यूट ने एडजस्ट कर दिया, CR, GR, PL मैं ये ऑर्डर देता था, तो आप इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व टू लॉस ऑन मर्जर। तो इन दैट केस आपका बैलेंस शीट में अगर कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करोगे तो कैपिटल रिजर्व विल बी 70 एंड जनरल रिजर्व विल बी पूरा 360। हाँ, और इन इंस्टीट्यूट के सम में उनका कैपिटल रिजर्व इज 280 और उनका जनरल रिजर्व 360 माइनस 210 वाज 150। तो उनका ऐसे करके आएगा 430, इंस्टीट्यूट का, हम लोग का ऐसे करके 430 आने वाला है। आइए बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट तो खाली ऐड करके बनाना है। अब ये देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस खाली नोट देखो, बाकी तो सब एडलेस करके बनाना। ये देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट, कैपिटल रिजर्व 280, सिक्योरिटी प्रीमियम 410, जनरल रिजर्व 150। क्योंकि लॉस ऑन मर्जर को जनरल रिजर्व से उन्होंने एडजस्ट किया, आपके पास ऑप्शन है, आप कैपिटल रिजर्व से भी कर सकते हो। मैंने आपको बार बार बोला कि ये मैंने डिसाइड किया है कि CR, GR, PL आप कोई सा भी रिजर्व यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने GR किया, मैं हमेशा ऑर्डर में करता हूं, तो मैं अगर आंसर बनाता तो मेरा कैपिटल रिजर्व आता 70, सिक्योरिटी प्रीमियम 410 और जनरल रिजर्व 360, टोटल फिर भी 840 आता, बैलेंस शीट पूरा मैच करता। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन अमलगमेशन। आइए बोरोइंग कॉस्ट का सम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सम बोलता है कि यू लिमिटेड ने एक टर्म लोन लिया 620 का, पूरा रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करेगा अपनी फैक्ट्री का। 1 अप्रैल को लोन लिया है, 30 अप्रैल तक, अगले साल 30 अप्रैल तक मॉडर्नाइजेशन चला है। 510 लाख रुपया खर्चा हुआ है मशीनरी पे। 54 लाख एडवांस टू सप्लायर दिया है फॉर एडिशनल असेट विच वेर ऑल्सो रिसीव्ड एंड इंस्टॉल्ड बिफोर 30 अप्रैल 2024। एडिशनल असेट हैज ऑल्सो टेकन सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, साफ बोल दिया है, तो एडिशनल असेट भी क्वालिफाइंग असेट है। और 56 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल में लगाया है। तो आप अगर ढंग से देखोगे ना तो 620 का टोटल लोन था, 510 लगा मशीन में, 54 लगा नई असेट में और 56 लगा वर्किंग कैपिटल में। ये नॉन क्वालिफाइंग है, ये दोनों क्वालिफाइंग है, तो इन दोनों का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, इसका इंटरेस्ट को पीएल में डालना है। मैच कर रहा है ना, 6 4 10 0 1 2 5, हाँ मैच कर रहा है। टोटल इंटरेस्ट 68.2 है। आप रेट भी निकाल सकते हो, 68.2 डिवाइडेड बाई 620 विच इज 11%। तो 510 का 11% निकाल लो, वो मशीन में ऐड करेंगे। $56.1, 54 का 11% निकाल लो, 5.94, वो एडिशनल असेट में ऐड करेंगे।
और बाकी जो इंटरेस्ट बच गया वो पीएल में डाल देंगे। और आप प्रोपोर्शनेटली भी निकाल सकते हो, 68.2 टोटल इंटरेस्ट है इंटू 510 डिवाइडेड बाई 620 मशीन के साथ, इंटू 54 डिवाइडेड बाई 620 अदर असेट के साथ, और इंटू 56 डिवाइडेड बाई 620 P&L में। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। प्रोपोर्शनेट किया, देखो मशीन क्वालिफाइंग असेट, एडवांस टू सप्लायर क्वालिफाइंग असेट, वर्किंग कैपिटल नॉट ए क्वालिफाइंग असेट। मशीन का इंटरेस्ट 56.1 कैपिटलाइज्ड, अदर असेट का 5.94 कैपिटलाइज, इसका P&L में। दो ठो अलग अलग कॉलम बना लिया, हम लोग तो यहीं पे लिखते हैं टू बी कैपिटलाइज, टू बी कैपिटलाइज, टू बी ट्रांसफर टू P&L, थोड़ा अच्छे से सजा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपी होटल लिमिटेड है, एक एग्रीमेंट किया है मिस्टर ए के साथ, अपने होटल को रन करने का। फिक्स्ड रिटर्न पेएबल होगा मिस्टर ए को। कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे मैनेजमेंट है, फिनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। मतलब ए इज नॉट ए डायरेक्टर, तो वो की मैनेजमेंट पर्सन नहीं है। मिस्टर ए डज नॉट ओन एनी वोटिंग पावर, तो वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होल्डिंग इंटरेस्ट दैट गिव्स हिम कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वो भी नहीं है। वुड ही बी कंसीडर्ड एज रिलेटेड पार्टी? आंसर इज नो। एक इंडिविजुअल को रिलेटेड पार्टी बनने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा, नहीं तो की मैनेजमेंट पर्सोनल बनना पड़ेगा, नहीं तो उनका रिलेटिव बनना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मिस्टर ए कुछ भी नहीं है, तो मिस्टर ए विल नॉट बी ए रिलेटेड पार्टी। आंसर लिखा, मिस्टर ए विल नॉट बी ए रिलेटेड पार्टी। रीजन दिया कि इंडिविजुअल जिनके पास स्टेक है और कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है, आप पैरा 1 करके लिखना। फिर की मैनेजमेंट पर्सोनल वाला बात लिखना, वो उन्होंने यहां लिखा नहीं, आप जरूर ये लिखा है कि क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है तो वो की मैनेजमेंट पर्सोनल भी नहीं है। दोनों पैराग्राफ लिख देना और कंक्लूजन दे देना कि भाई वो एक रिलेटेड पार्टी नहीं है। 3 क्वेश्चन और बचा, मेरे को प्यास लग गया थोड़ा सा। Question number 18. Sun Limited wishes to obtain a machine costing 30 लाख by way of lease. Effective life 14 साल का, कंपनी requires it for 3 years. 14 साल का लाइफ में अगर 3 साल का लीज पे असेट लेते हो तो इट इज नॉट ए मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, सो इट बिकम्स ऑपरेटिंग लीज. नेक्स्ट, इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर 3 लाख रुपया पर एनम. 3 लाख रुपया पर एनम, 3 साल दोगे तो 9 लाख रुपया टोटल दोगे. 9 लाख रुपया 30 लाख की असेट में नॉट कवरिंग 90%. इवन 9 लाख भी नहीं, आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज 90% और मोर ऑफ द असेट का दाम, देन ओनली द लीज बिकम्स फिनांस लीज, अदरवाइज इट इज एन ऑपरेटिंग लीज. पीवी के लिए उन्होंने लिखा है इम्प्लिसिट रेट 15%, पीवी फैक्टर 3.36. अगर आप 3 लाख को 3.36 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो आता है 10.08. 10.08 को अगर आप 30 लाख से डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो इट इज बिकमिंग ओनली 33.6%. 90% होने से जाकर के फिनांस लीज बनता. तो उन्होंने पूछा है कि द चीफ अकाउंटेंट इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज लीज रेंटल्स. पहला क्लोजिंग कर दो कि ये फिनांस लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज में जो भी रेंट पेमेंट होता है उसको P&L में डाल के खत्म कर देना पड़ता है. अगर लीज रेंट यूनिफॉर्म है तो यहां पे यूनिफॉर्म है, P&L में डाल दो. अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो एवरेज लीज रेंट निकाल करके अकॉर्डिंगली P&L में डाले होते. देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या क्या आंसर लिखा है. पहले उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाला 10.08, 30 से डिवाइड करके बोला कि भाई ये बहुत कम है एंड देयरफॉर इट इज नॉट एन फिनांस लीज. फिर लिखा 3 साल का इकोनॉमिक लाइफ है, 14 साल में, तो लीज को ऑपरेटिंग लीज बोलना है. आप इसको 2 पैरा बना देना, इन्होंने हौच-पौच करके एक साथ घुसा दिया है. अब ट्रीटमेंट, पहले आप परसेंटेज वाला लिख दिए 33.6, क्लोजिंग रिमार्क्स फिनांस लीज. फिर 3 साल आउट ऑफ 14 ईयर
not a major part of the economic life, not a finance lease, it is an operating lease. Not a finance lease, गलती से मैं अगर उल्टा पल्टा बोल दिया तो ध्यान दे देना. ऑपरेटिंग लीज में क्या करना है, देयरफॉर देखो, लीज पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस अनलेस एन अदर सिस्टमैटिक बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम पैटर्न. तो मैंने आपको बोला यूनिफॉर्म लीज रेंट है, वही सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, यहां पे यूनिफॉर्म वाला ही है. 3 लाख का लीज रेंट है, उसको P&L में डाल के खत्म कर देना है. तो आप 4 पैराग्राफ बनाओगे. 1 परसेंटेज वाला, सो इट इज एन ऑपरेटिंग लीज. 2 टाइम पीरियड वाला, सो इट इज एन ऑपरेटिंग लीज. 3 लाख रुपए पर मंथ का लीज रेंट विल बी ट्रांसफर टू P&L एज एन एक्सपेंस. खत्म. 3 पैरा में हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. The following information are given. Net profit 37,50,000, number of share 5 लाख. अर्निंग पर शेयर अगर मैं डिवाइड करूं तो ₹7.50. उन्होंने लिखा कन्वर्टिबल डिवेंचर है कंपनी का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से ही मेरे पास है. 50,000 नंबर है, कन्वर्जन में 55,000 शेयर इशू करना पड़ेगा. तो इसको हम लोगों को 55,000 को नंबर ऑफ शेयर में ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड डाइल्यूटेड ईपीएस. और इंटरेस्ट कितना पेमेंट हो रहा है बच्चों, इंटरेस्ट के बारे में अभी तक कुछ लिखा नहीं है. हाँ लिखा है ना, 8% बॉन्ड है और 50,000 इंटू 100 50 लाख रुपया का बॉन्ड है, इंटू 8%, 4 लाख का ब्याज है. टैक्स रेट 30% है. नेट कर लेंगे, 4 लाख इंटू 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7. 4 लाख इंटू 0.7 नेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ता है ना. तो 4 लाख इंटू 0.7 करेंगे 2,80,000. तो 2,80,000 रुपया को विच इज इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में ऐड करना है और 55,000 नंबर ऑफ शेयर को नंबर ऑफ शेयर में ऐड करना है. डाइल्यूटेड ईपीएस निकल जाएगा. तो उन्होंने बोला कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. आइए सोल्यूशन देखते हैं. ये रहा बेसिक ईपीएस, परफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 7.5. ये रहा डाइल्यूटेड ईपीएस. इतना ज्ञान करके निकालने का ही नहीं है, सीधा ऐसे लिखना है आपको. डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू 37,50,000 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाई 5 लाख प्लस 55,000. तो अपना आ जाएगा 37,50,000 प्लस 2,80,000. न्यूमरेटर में आ जाएगा 40,30,000, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5,55,000. दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस. बेसिक से छोटा है तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस के रूप में प्रेजेंटेड होगा. आखिरी क्वेश्चन. आरटीपी विल बी कंप्लीटेड. सहर्ष लिमिटेड है, इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस बनाती है, अकाउंट्स फाइनलाइज कर रही है. पहला इशू सामने आया प्रोविजंस को लेकर के. 3 लोकेशन में प्लांट है. एक प्लांट को शट डाउन करना पड़ रहा है. एक रेंटल एग्रीमेंट है. रेंट पर मंथ 80,000 है. अगर कंपनी कैंसिल करेगा एग्रीमेंट को तो उसको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 मंथ का रेंट. तो 6 इंटू 80,000 4,80,000 इज दी पेनल्टी. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वाला कहानी है. मिनिमम लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा. आप क्वेश्चन देखिए. फिर लिखता है इफ द कंपनी कैंसिल्स द एग्रीमेंट इट हैज टू पे पेनल इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ. हो गया. द कंपनी ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू सबलेट द साइट एट 45,000 पर मंथ. मैंने अगला 80,000 करके पूरा साल का भाड़ा दे दो और 45,000 रुपया करके रेंट रिकवर कर लो किसी से. तो उस केस में क्या होगा, अपना नेट में कितना लॉस आएगा दिखाता हूं. 12 महीना का है तो अगर 12 महीना का 80,000 करके देंगे तो 9,60,000 हम लोग लैंडलॉर्ड को देंगे और 12,000 का 45 करके हम रिकवर कर लेंगे. नेट पे 35,000 ही तो हो रहा है ना. चलो हम लिख दिए तो 45 इंटू 12 5,40,000 हम रिकवर कर लेंगे. तो नेट पे मेरा कितना लॉस आएगा 8,960 माइनस 540 420 का. तो अब देखो अगर हम पेनल्टी देंगे तो 480 का लॉस होगा. अगर हम चलाएंगे तो 420 का लॉस होगा. एनीवे मेरे को धंधा तो बंद करना ही है वो वाला.
पर रेंटल एग्रीमेंट इज एन ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, बाहर निकलेंगे तो भी पेमेंट है, अगर रेंट एग्रीमेंट से बाहर निकलेंगे तो पेनल्टी देना होगा, नहीं बाहर निकलेंगे अगर तो हम लोगों को वो देना होगा, क्या नाम, सबलेट करके थोड़ा सा पैसा कमा सकते, तो 420 का लॉस होगा। तो 480 का लॉस और 420 का लॉस विच एवर इज लोअर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में वो P&L में प्रोवाइड करना पड़ता है। मैं आंसर आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो 480,000 कैंसिलेशन पे, 420 नॉन कैंसिलेशन पे, कंटिन्यूएशन पे, तो लोअर को लॉस को प्रोवाइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, केस फाइल हुआ है कंपनी के अगेंस्ट में, पेनल्टी 20 लाख का है, कंपनी ने लॉयर को अपॉइंट किया है, 2 लाख का फीस है, 50% हम पे कर दिए, 50% आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट बाद में होगा पर प्रोविजन पहले बना लेना पड़ेगा फीस का। 75% चांस है कि पेनल्टी मे नॉट बी लेवीड, तो प्रोविजन तो बनाने का चांस नहीं है, प्रोविजन तभी बनता है व्हेन प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% दैट वी विल लूज द केस। तो हियर वी आर नॉट लूजिंग द केस, सो नो प्रोविजन ऑफ दिस 20 लाख, बट लॉयर का फीस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आइए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है देखते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन दिया, तीनों कंडीशन आपको लिखना है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी मोर देन 50%, रिलायबल एस्टिमेट। तो क्योंकि 75% चांस है जीतने का, तो वी विल नॉट मेक ए प्रोविजन। हाउएवर फीस का जितना 2 लाख है, 1 लाख हम पे कर चुके, तो फीस टू बैंक हो गया होगा, 1 लाख का और प्रोविजन बना देंगे, तो लिखा रिमेनिंग 50% का प्रोविजन बनाना होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। लास्ट पार्ट, आज का लास्ट, कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई ए कंसाइनमेंट वर्थ 1 करोड़ रुपया टू वन ऑफ इट्स डीलर्स बाय द ईयर एंड। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, इफ डिलीवरी इज नॉट मेड ऑन टाइम, कंपेंसेशन ऑफ 15% of the value is to be paid. While the consignment was in transit, one of the trucks carrying goods worth 30 lakh met with an accident. It was however covered by insurance. According to surveyor's report, the policy amount is collectible subject to 10% deduction. तो 30 लाख में हम लोगों को 3 लाख रुपया नहीं मिलेगा, 27 लाख इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, तो 3 लाख रुपया का लॉस P&L में डालना है। The company has received an information that the policy amount has been processed and the dealer has also claimed for the compensation. Give your answer based on the relevant accounting standard. अच्छा, हाँ तो ठीक है ना। अब वो ये जो 15% का जो कंपनसेशन का पेमेंट होगा, वो 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट होगा या 30 लाख के पे पेमेंट होगा, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी एक ही डिलीवरी में डिले है, बाकी सब में कहीं डिले नहीं है। तो पहले तो अपना जो इंश्योरेंस का जो कहानी है, उसका तो 3 लाख का लॉस हमको लिखना पड़ेगा, ये पहला अलग बात हो गया। लेकिन मेन जो सम है, ये 15% का जो हमको सामने वाले को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, मेरा हिसाब से 30 लाख पे कैलकुलेट करो कि वे एज्यूमिंग दैट बाकी 70 लाख का गुड्स विल बी डिलीवर्ड इन टाइम या हैज बीन डिलीवर्ड इन टाइम, ओनली 30 लाख में हम लोग को लॉस है, तो कंपेंसेशन का पेमेंट 30 लाख इंटू 15%, 4.5 लाख का प्रोविजन हम बना देंगे, बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ऑब्लिगेशन भी अराइज हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो भी है, तो 4.5 लाख का लॉस का प्रोविजन बना दो। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हो कि 1 करोड़ का 15% का प्रोविजन बनेगा, बिकॉज क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरी नजर में। 4.5 लाख। आइए लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट हम लोगों का कितना है, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखते हैं। 30 लाख का लॉस है, 27 लाख रिकवरी हो जाएगी, तो 3 लाख का ही लॉस है। 3 लाख का लॉस का प्रोविजन बनाना होगा, क्लियर है। इंश्योरेंस से 27 लाख मिल जाएगा, वो एक असेट है। फिर जो डीलर को कंपेंसेशन है, वो 4.5 लाख रुपया का है, वो अलग से हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को देना पड़ेगा सामने वाले को। ये 4.5 लाख इंस्टीट्यूट ने लिखा है, ये भी लिखा है, लेकिन देखो ऑल्टरनेटिवली कंपेंसेशन में बी कंप्यूटेड ऑन 1 करोड़ विच इज 15 लाख। ये आप नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मेरे को लगता है बाकी 70 लाख का सामान का डिलीवरी टाइम पे हो रहा है, 30 लाख में प्रॉब्लम है, 30 लाख का 15% ले लो। लेकिन अगर आप बोलोगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे 15% लगेगा, थोड़ा भी फेलियर होने से
थोड़ा नाजायज लगता है, बट इन दैट केस 15 लाख का लॉस लिखना होगा। तो एक यहाँ पे 15 लाख का लॉस, यहाँ पे 3 लाख का लॉस। मैं तो बोलूंगा ये 15 लाख का लॉस ऑल्टरनेटिव करके ही छोड़ दो, 4.5 लाख का लॉस और 3 लाख का लॉस। ये जो लॉस है ये मेरा माल जलने का लॉस है, माने डिलीवरी लेट होने का लॉस है, और ये 4.5 लाख का लॉस प्रोविजन वाला लॉस है। AS29 में 4.5 लाख कवर होता है। ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो फाउंडेशन और 11-12 में भी आप पढ़ते थे। सो विद दिस हम लोगों का पूरा RTP का डिस्कशन कंप्लीट होता है। बहुत ही सुंदर डिस्कशन, पूरा 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच। आप रिवाइज कर लो, रिवीजन टेस्ट पेपर है, अच्छे से एग्जाम देना। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिखो। थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।